somebody with the gift of interpretation. I had a Christian friend of mine who had once told me something very peculiar, and I would love for you to shed some light on this. She had said that she had gone for, I don't know what it's called, it's like a camp where everyone studies Christianity together. Okay. What is the word for this? A seminar sort of? Yeah, sort of like a seminar. So she said that uh, she's had an experience at one of the seminars where she saw people speaking in tongues. Right. And I was like, what does that mean? So she's like, you'll see that some of the people are able to channelize a language which doesn't even exist. It's not even human. Uh, this is not a negative thing, right? No. It is one of the gift of the Holy Spirit. What is this, sir? Like, can you explain? Like, I've given you a small context here. No. It's like there are 9 gifts of the Holy Spirit. This is one of the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. It is speaking in tongues means you're communing with God, and God is communing with you through that language. That language the demons cannot understand. That language, but along with that gift, there's another gift called interpretation of tongues. So if at all I just speak in tongues and there's nobody to interpret it, then that is gone for nothing. If I have got a tongue, now see, I speak in tongues. Shikaraba habalaropa lahema katupasumma karaikata larabukuma hatika. Now this is a spiritual language, a gift of tongues that I have, but there's nobody to interpret it. Right? So I would rather speak in a tongue which everybody understands. So when this gift operates, You just channelize something, what is that? right? Yes. Okay, please go on, sir. So when I spoke now, right, if there was a one with the gift of interpretation, you would have known what I spoke. That is what God spoke at this particular time. Right? So when I use this gift, it is required that somebody with an interpretation of tongues is there. Otherwise, just to glorify myself, I cannot speak in tongues. I need the interpretation of these tongues also. Now I spoke something which was from God. Nobody understood. This is not a language you have studied, right? No. I mean, it is kapara humaku balakata hala kusinda karabahan yubandala. This language I have not learned. This is just coming through and through in the flow. And there is somebody with the gift of interpretation who will interpret what I have spoken. These languages can be in an anger tone and it can be a loving tone also. But it depends on the situation that Okay. God wants to interfere, God wants to interpret, God wants to. तो ये आदमी ने कुछ बोला जो बोलते हैं गिफ्ट ऑफ टंग्स. नाउ बाइबल में कहा जाता है कि द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ टंग्स है वो है एक्ट्स चैप्टर नंबर 2. Acts chapter number 2, where disciples were gathered together, they all spoke in tongues as the Spirit gave utterance. ऐसा मीन्स वापस सब लोग स्पीकिंग इन टंग्स चालू हुआ था. लेकिन ये स्पीकिंग इन टंग्स में ऐसा स्पेसिफिक चालू हुआ था कि सब लोग जब बात कर रहे थे एक लैंग्वेज में, देयर वर बंच ऑफ पीपल हु थॉट दैट ऐसे लोग थे वहाँ पे जो आए थे अलग अलग क्या बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, वो जेरूसलम में आए थे वो टाइम में. और वो पॉइंट में क्या हुआ था कि कोई कोई लोगों को अपने लैंग्वेज का, समझो कि ना कोई गुजराती नहीं था लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कोई गुजराती या कोई हिब्रू या कोई अलग अलग भाषा का लोग वहाँ पे आए दूसरे कंट्रीज का, या उनको अपने लैंग्वेज में कोई कोई लोगों ने क्या बोला वो समझ में आया. तो अभी इसमें क्या होता है कि इन एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 इसमें क्या होता है कि एक इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि टंग्स एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करने के लिए गॉड ने दिया था. समझो किसी को पता नहीं कि हिंदी पता नहीं, तो गॉड एक लैंग्वेज देता है, वो हिंदी बात करेगा अगर उसको कभी हिंदी पढ़ा भी नहीं. ऐसा स्टोरीज मैंने सुना है इन द मिशनरी सर्कल्स, ऐसा स्टोरीज है खाली, राइट. बट ऐसा सम पीपल उन्होंने ऐसा कभी कहा, उन्होंने टंग्स में बात किया और वो एक लैंग्वेज हो गया और किसी को समझा. उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल बैकअप मेरे को पता नहीं, ऐसा कुछ रिसर्च किया है उसके पीछे. लेकिन आई बिलीव कि मेरे को लगता है कि टंग्स एक लैंग्वेज नहीं था जो
कम्युनिकेशन के लिए यूज हुआ था. कम्युनिकेशन इन द सेंस जिसको समझो लैंग्वेज नहीं पता वो दूसरा लैंग्वेज बात करने के लिए, क्योंकि पीटर ने टंग्स बोलने, सब लोग टंग्स हो बात करने के बाद पीटर ने एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि टंग्स क्या था. ये जो इंसिडेंट, टंग्स नहीं, ये इंसिडेंट जो हुआ है एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 में, ये क्या है, वी आर नॉट ड्रंक, और उन्होंने बाद में गॉस्पेल प्रीच किया. राइट, सो टंग्स इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू द गॉस्पेल. वो समझना चाहिए कि गॉस्पेल और गॉस्पेल कम्युनिकेट के लिए प्राइमरी नहीं था, खाली एक साइन था इनिशियली. तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट है जो लोग बोलते हैं कि टंग्स इज ऑलवेज एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. राइट, लेकिन आई बिलीव कि जब डिसाइपल्स बात कर रहे थे इन टंग्स, इवन दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर स्पीकिंग. राइट, और एल्स इट डिडंट मेक सेंस. राइट, फॉर देम, उसको जब उन लोग बात कर रहे थे इन टंग्स, आई डोंट थिंक सो दे अंडरस्टूड. Others understood, and I believe खाली ये gift of tongues नहीं था, there was gift of other miracles where people could hear and understand. That was some supernatural miracles. लेकिन ये understanding बहुत जगह भी ऐसा हुआ कि ये खाली known language होगा. Right, so it's not, because another side में हम देखते हैं 1 Corinthians chapter number 14. Actually इन्होंने अभी जो speaker था Salvador, so इन्होंने क्या कहा कि स्पीकिंग द गिफ्ट्स, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये मेंशन किया है बाइबल में. हाँ, वो बाइबल में कहाँ पे मेंशन किया, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 12, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, आप पढ़ सकते हो. ये एक्सपोजर जो 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, ये सब क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर थियोलॉजीज और डिनोमिनेशन के रीजन के वजह से. मैं ट्रेडिशनल चर्च से आता हूँ, तो वहाँ पे बहुत लोगों को इसका एक्सपोजर नहीं है ये टंग्स का. कोई कोई लोग सेसेशनिस्ट है, एक व्यू है सेसेशनिस्ट जो बिलीव करते हैं कि गिफ्ट्स एग्जिस्ट नहीं होता, ये सब टंग्स बकवास है, ये सब खाली नाटक करते हैं. वो पोजीशन है अच्छे थियोलॉजियंस का भी. फॉर एग्जांपल जॉन मैकार्थर बिलीव नहीं करते इन द गिफ्ट ऑफ टंग्स. ये वो बिलीव भी नहीं करते कि इन क्या बोलते हैं, नॉट जस्ट गिफ्ट ऑफ टंग्स, इन द गिफ्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट, लाइक गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट आज के लिए है, वो सब चीज में ज्यादा बिलीव नहीं करते उनका. लेकिन इट्स नॉट, एक थियोलॉजिकल रीजन थोड़ा फ्लॉड है मेरे को लगता है शायद, लाइक यू नो, आई मीन दैट इज माय ओपिनियन अगेन. ऑन द अदर हैंड देयर आर वैसे लोग हैं जो टंग्स में बात करते हैं फ्रॉम द स्कॉलरली पर्सपेक्टिव भी मैं बोल रहा हूँ, और उनका भी रीजन है कि बाइबल क्लियरली कहता है कि ये सब चीज आज के लिए भी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो एंड होता है. तो अभी इसमें मेरा एक पॉइंट है जो, बाय द वे, ये पॉडकास्ट वाज, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ, टिल डेट, क्योंकि जो क्वेश्चंस, एंड आई अप्रिशिएट रणवीर फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जो बराबर क्वेश्चंस उसने पूछा है यहाँ पे. और ये आदमी, ये एक ऑर्डिनरी आदमी है, मेरे को लगता नहीं कि ही इज अ फेमस पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन उसका ये कुछ भी बोल रहे बाइबल से ही बोल रहे, लाइक यू नो, उसका एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है उससे भी बोल रहे बिब्लिकल लाइन में. तो अगेन उसका खाली एक पॉइंट उसने हाईलाइट नहीं किया था कि टंग्स क्या क्या बोलते हैं उसका, टंग्स आर नॉट जस्ट अ साइन दैट यू आर एक्सेप्टेड बाय गॉड. राइट, उनका वो पॉइंट है, टंग्स आर अ साइन दैट यू आर एक्सेप्टेड बाय गॉड, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है. और मैं आपको खाली ब्रेक डाउन कर देता हूँ फ्यू ये पॉइंट बताने. देयर आर प्रिटेंशियस टंग्स. प्रिटेंशियस टंग्स मतलब आप, मैंने सर्कल्स में भी एक्सपीरियंस किया है, कभी क्या होता है कि कोई करिस्मेटिक चर्च में जाता है या पेंटिकॉस्टल चर्च में जाता है, और वहां पे जाता है तो क्या बोलते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि भाई आप, हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसके साथ रिपीट करो. नाउ कभी कभी ऐसा, ये एक है एक्सप्लेनेशन कि थोड़ा मुंह खोल के हमें बात करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, वो, और वैसे लोग टंग्स के अंदर घुस जाते हैं गॉड का, लेकिन कभी कभी नहीं होता है. तो ये लोग जो, क्योंकि पास्टर कुछ बोलता है, उन लोग ट्राई करते हैं बात करने, राइट, लेकिन इट इज प्रिटेंशियस. उनका बात में दिखता है कि ये एफर्ट्स लगा रहे, तो टंग्स फ्लो से जाता है. मैं आप टंग्स में बात नहीं करूंगा अभी, बिकॉज अगेन बाइबल में एक रेस्ट्रिक्शन दिया उसके अगेंस्ट पब्लिकली स्पीकिंग इन टंग्स के लिए, सो दैट एक अनबिलीवर, समझो अभी आज हमारा पॉडकास्ट ये देख रहा है वीडियो, और हमने टंग्स में बात किया, जैसे ये भाई साहब यहाँ पे है, रिस्पेक्टफुल लाइक यू नो पर्सन, उसने टंग्स में बात किया है, लेकिन कितने अनबिलीवर्स बाहर है, उनको ये इसका मीम बना सकते हैं, इनका मजाक उड़ा सकते हैं, जो टंग्स में बात कर सकते हैं. पॉल ने, अपोस्टल पॉल ने यही कहा है कि जब हम साथ में गैदर, अपोस्टल पॉल बदले वो खुद टंग्स में बात करते थे, उसने एंकरेज किया टंग्स में बात करना,
और वो पर्सनल टाइम में भी वो टंग्स में बात करते थे, लेकिन वो उनका बिलीफ था कि अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बात करना है, कि लोगों को समझे। क्योंकि अगर कोई आदमी, जैसे अभी कोई भी ये वीडियो क्लिप देखेगा, वो हमें जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है सब चीज, उसको लगेगा पागल है या ढोंगी लोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटलीस्ट जिसका इसका पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो मेरे को लगता है कि आदमी जेन्युइन आदमी था, और उसका एक्सपीरियंस भी जेन्युइन था। तो खाली आपको ये समझना चाहिए कि टंग्स हमेशा गॉड का नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले चालू करता हूँ गॉडली मैन, जो मेरे ओपिनियन से गॉडली मैन थे और फेमस मैन थे। एक तो डॉक्टर बिलीग्राम ने कितने कंट्रीज में प्रीच किया था, लेकिन उन्होंने कभी स्पीकिंग इन टंग्स नहीं किया। उसके बाद डॉक्टर जॉन मैकार्थर, जो बाइबल क्या टीचर है, उन्होंने कमेंट्री लिखा है, और जॉन मैकार्थर ने भी कभी टंग्स में बात नहीं किया। सेसेशनिस्ट भी है, मैं डिसएग्री करता हूँ उसके पोजीशन से, लेकिन लाइक ही, बट आई बिलीव ही सेव्ड। मैं बिलीव नहीं करता कि अगर उसने टंग्स में बात नहीं किया तो हेल में जाने वाला है, ऐसा नहीं है। वो सेव्ड है, एविडेंस उसका क्लियर है उसका, राइट, फॉर उसके लाइफ से। बाद में डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, वन ऑफ माय फेवरेट अपोलॉजिस्ट, डॉक्टर नॉर्मन गाइजल, राइट, अगेन फेवरेट अपोलॉजिस्ट। मुझे पता भी नहीं, शायद आई थिंक सो माइकल हाइजर ने भी शायद टंग्स में बात नहीं किया, वो भी स्कॉलर है बाइबल का। तो ऑल दिस पीपल दे नेवर, उन्होंने टंग्स में बात नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम द स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, कभी अभी ऐसा बोलते हैं कि सब पागल लोग ये टंग्स में बात करते हैं, या खाली ये क्रेजी लोग जिसको बाइबल थियोलॉजी नहीं पता वो टंग्स में बात करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। वैसे ये साइड में भी है स्कॉलर्स, लाइक जैसे मेरा हमारे पास ये था डॉक्टर माइकल ब्राउन, जो जूइश अपोलॉजिस्ट है, मींस अपोलॉजिस्ट अगेंस्ट द, लाइक एक्सप्लेनिंग द जूस अबाउट जीसस, मसियानिक, हम बोलते हैं उसको मसियानिक, क्या बोलते हैं, जू, मसियानिक जू बोलते हैं। वो स्कॉलर है, वो पीएचडी है, डॉक्टर माइकल ब्राउन। वो टंग्स में बात करते हैं। एंटी राइट, द बिशप ऑफ, फॉर्मर बिशप ऑफ बेनम, आई थिंक सो, एंटी राइट, उन्होंने भी स्पीकिंग इन टंग्स किया है। वो भी स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत बुक्स लिखा है ऑन द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। बाद में डॉक्टर क्रेग किनर, जिसने 2 वॉल्यूम्स लिखा है और कमेंट्री भी लिखा है, आईवीपी कमेंट्री, आई थिंक सो न्यू टेस्टमेंट कमेंट्री था शायद, ऑन, इतने बड़े स्कॉलर है, वो भी टंग्स में बात करते हैं। और हमने सुना है डीजे दिनाकरन या रेनार्ड बॉन्के भी, जो इवेंजलिस्टिकल है, फेमस नोन है, वो भी स्पीकिंग इन टंग्स करते हैं। उनका भी थोड़ा रेप्यूटेबल मिनिस्ट्री है, या था, और बोथ आर पास्ट अवे। तो ये है कि गॉडली पीपल दोनों साइड में है, और स्कॉलरली पीपल भी है दोनों साइड में। और ऑल्सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकिंग इन टंग्स का मतलब ये नहीं है कि होली स्पिरिट इज ऑलवेज हैप्पी विद यू, राइट। क्योंकि स्पीकिंग, हमने इसका अब्यूज, ग्रेट अब्यूज देखा है क्रिश्चियन चर्च में, इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं जॉन मैकार्थर, वैसे लोग इवन अपोलॉजिस्ट सर्कल्स में भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट को ज्यादा एम्फोसाइज दिया जाता है कोई कोई सर्कल्स में, और होलीनेस को ज्यादा एम्फोसाइज नहीं दिया जाता है। बाइबल स्टडी, बाइबल टीचिंग, ये सब चीजों के ऊपर एम्फोसाइज नहीं किया जाता है ना, हमेशा नहीं, लेकिन कोई कोई सर्कल्स में। और तो हमने टेली इवेंजलिस्ट देखा है, जो टीवी में आके टंग्स में बात करते हैं और ऐसा बोलते हैं होली स्पिरिट ने मेरे को ऐसा कहा है, लेकिन उन लोग फाइनेंशियली बहुत फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोग हैं जो टेली इवेंजलिस्ट है, टंग्स में बात करते हैं, लेकिन वो लोग भी सेक्सुअल इमोरलिटी में गिर चुके हैं, लाइक। तो ऐसा, तो इट इज नॉट अ साइन कि होली स्पिरिट इज कंप्लीटली अग्रीइंग, या आपके साथ सब कुछ जो आप कुछ करने वाले होली स्पिरिट बोल रहे हैं सही है, ऐसा नहीं है। प्लस अगर आप टंग्स में बात करते हो, वो ऑल्सो ये साइन नहीं है कि आपका डॉक्ट्रिन सही होने वाला है। एक फेमस आदमी था, पावरफुली यूज्ड बाय गॉड एट वन पर्टिकुलर टाइम, उनका नाम था विलियम ब्रैनम। ऐसा ऐसा बोलते थे कि उन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी होता था, और एंजल्स उसे दिखाई देते थे, और जो प्रोफेसी करते थे वैसे बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहता था प्रोफेसी, राइट। अभी आप डिपेंडिंग, आप सेसेशनिस्ट हो तो आप उनको फ्रॉड ही बोलोगे ऑन द फेस, लेकिन आप बिलीव करते हो गिफ्ट्स ऑफ द टंग्स, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस पोजीशन, क्या आज भी गिफ्ट ऑफ टंग्स, और वो टाइम में भी ऐसे सुपरनैचुरल होते हैं। मैं कंटिन्यूस पोजीशन में हूँ, तो आप जब ये भी बिलीव करते हो तो आप बोल सकते हो कि होली स्पिरिट यूज कर रहा था या एंजल्स यूज कर रहा था। लेकिन ये विलियम ब्रैनम, जो उसका कॉलिंग नहीं था, वो घुस गए टीचिंग में, राइट। मुझे टीचिंग करना है, और उसने कहीं टीचिंग नहीं पढ़ा, थियोलॉजी नहीं किया, नहीं किया मतलब वो पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए,
प्रॉपरली सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को रेवलेशन है, मैं अपना टीचिंग्स बनाऊंगा। तो उन्होंने कितना टीचिंग्स किया, जैसे जो हम बोलते हैं द वननेस कल्ट, राइट, उनका टीचिंग्स इज इन लाइन विद द वननेस कल्ट। और वैसे वो सब था, सीड क्या लिलित और अलग अलग फॉल्स टीचिंग्स उन्होंने प्रीच किया था अपने लाइफ टाइम में, लेकिन वो सेव्ड थे। आई बिलीव ही वाज सेव्ड बिकॉज वो जीसस क्राइस्ट को बिलीव करते थे, ये था। लेकिन और वो टंग्स में भी होली स्पिरिट था, राइट। बट अगेन जब आपके अंदर एक वो ईगो हो जाता है कि भाई मैं ऐसा अपना ही करूंगा, सो अगर आप स्पीकिंग इन टंग्स करते हो लेकिन आप पढ़ते नहीं हो बाइबल, उसको हटाते हो, अपना खुद का टीचिंग्स एरोगेंस से करते हो, तो वो इफेक्ट होता है, बाकी लोगों को भी डैमेज हो जाता है। विलियम ब्रैनम चला गए, लेकिन विलियम ब्रैनम के कोई कोई लोग उसके मिरेकल्स या ये सब चीज देख के उन्होंने अपना खुद का कल्ट बना दिया, द ब्रह्मनाइट्स आई गेस, राइट। उन लोग ऐसा पूरा कल्ट बन गया। तो ये स्पीकिंग इन टंग्स, यस बिब्लिकल वो सब हो सकता है, बट ये साइन नहीं है कि गॉड इज प्लीज विथ यू। वही बोला, होलीनेस या प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का, प्रॉस्पेरिटी मतलब अब्यूजिंग, राइट। आई बिलीव कि क्राइस्ट सबको मींस एवरीबॉडी शुड बी प्रॉस्परस इन द सेंस दैट यू नो योर क्या बोलते हैं, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, वे डू थिंग्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, उसके लिए प्रॉस्परस होना चाहिए, भीख मांगना नहीं चाहिए, एटलीस्ट वो चीज है, राइट। यू शुड वर्क। ऑन द अदर हैंड उसके लिए नहीं, होली स्पिरिट सबको अंबानी बनाना नहीं चाहता, राइट। तो वो कभी कभी greedy people also who have received gift of tongues saved भी हो गए, लेकिन वो गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो tongues is a sign, not always a sign कि आपके पास होली स्पिरिट का ये है, क्या बोलते हैं, अनुमति है, क्या परमिशन है कि आप सब कुछ कर रहे हो सही है। ऑल्सो ये मैं आपको बताता हूँ, दिस इज, मैं जो बोल रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पीपल जो ये करिस्मेटिक सर्कल्स में या पेंटिकॉस्टल सर्कल्स में भी है, जिन्होंने बहुत सारा डिमोनिक एग्जॉर्सिज्म और वो सब चीज भी किया है। एक टंग ऐसा टंग्स भी है जो बोलते हैं डिमोनिक टंग्स, और ये अलग अलग आप रिसर्च करोगे कि अलग अलग कल्चर्स में, राइट, उन लोग भी टंग्स में बात कर सकते हैं, ऐसा ही जैसा सेम क्रिश्चियन सर्कल्स में वैसा भी होता है। लाइक ऑफ कोर्स वो ग्लोरीफाइंग नॉट गॉड है, वो सैटानिक डिमोनिक उसका ओरिजिन है, राइट। तो इसलिए कभी कभी कोई जैसे कि जॉन मैकार्थर ने एक सीरियल क्रिटिसिज्म किया था, उसने बोला कि दिस इज कुंडलिनी स्पिरिट स्पीकिंग इन टंग्स। लेकिन अगेन लाइक पीपल लाइक डॉक्टर, उन्होंने एक बुक भी लिखा था स्ट्रेंज फायर, इसको क्रिटिसाइज करके उसका रिस्पॉन्स दिया था डॉक्टर माइकल ब्राउन ऑथेंटिक फायर करके। तो दोनों बुक्स अच्छा है, क्योंकि एक अब्यूज के ऊपर डील करता है और ये उसका काउंटर एग्जाम्पल देता है। उन्होंने इन्वाइट भी किया था, डॉक्टर माइकल ब्राउन ने भी बहुत सारे बुक्स लिखे, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम द करिस्मेटिक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। तो ये खाली मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि टंग्स इज नॉट, ये एक्सट्रीम में जाता है कोई कोई डिनोमिनेशन, इफ यू डोंट स्पीक इन टंग्स उन लोग कहते हैं कि यू आर नॉट सेव्ड, आपके पास होली स्पिरिट भी नहीं है। ये गलत है। ऑफ कोर्स मैंने जब बताया था कि डॉक्टर बिली ग्राहम या जॉन मैकार्थर या विलियम लेन क्रेग या नॉर्मन गाइजर, राइट, ऑल दिस पीपल दे हैड द होली स्पिरिट, राइट, लेकिन टंग्स में उन्होंने बात नहीं किया, राइट। एंड और मैंने फ्रॉड भी बताया, जो टंग्स में बात करते हैं लेकिन फ्रॉड है, उनका टीचिंग्स बराबर नहीं है। डिमोनिक टंग्स भी हो सकता है, देयर कैन बी प्रिटेंशियस टंग्स भी हो सकता है। तो ये सब चीज आपको खाली एक बैलेंस रखना है, राइट। इट्स नॉट क्या बोलते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, राइट, इट्स नॉट जस्ट दैट गॉड इज एक्सेप्टेड यू, या इट्स नॉट ऑलवेज ये है कि आप होली स्पिरिट आपके साथ है, राइट। ये हमेशा सब कंडीशन में नहीं है, हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है ये पोजीशन में। और अगेन जिसके पास है ये गिफ्ट ऑफ टंग्स, उसको एरोगेंटली बात नहीं करना चाहिए, ऐसा कि हम सुपर स्पिरिचुअल है, राइट। और जिसके पास नहीं है गिफ्ट, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि होली स्पिरिट नहीं है उनके अंदर, ये गलत है, दोनों डॉक्ट्रिन्स गलत है। यू शुड नॉट बी स्पिरिचुअली प्राउड, बिकॉज टंग्स इज नॉट अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये आपको समझना चाहिए कि इट इज जस्ट अ गिफ्ट गॉड इज गिवन, जैसे बाइबल दिया है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास बाइबल है उसका मतलब वो नहीं कि आप क्या बोलते हैं यू आर लिविंग दैट लाइफ, या आप होलीनेस या वो सब फॉलो कर रहे, इवन दो आपको डॉक्ट्रिन्स मालूम होगा। वैसा स्पीकिंग इन टंग्स ऑल्सो एक गिफ्ट है, राइट, लेकिन गॉड ने दिया आपको, राइट, जिसको जेन्युइनली मिला है वो गिफ्ट, लेकिन वो साइन नहीं है कि आपको अभी बाइबल नहीं चाहिए।
या आपको पढ़ना नहीं है कुछ, होली स्पिरिट सब बता देगा, वो एक्सट्रीम में जाते हैं लोग। दोनों डायरेक्शन में बैलेंस व्यू होना चाहिए, द वर्ड एंड द स्पिरिट एंड स्पीकिंग इन टंग्स। अगेन पॉल, अभी बाइबल में सीधा जाके होता, अपोस्टल पॉल उन्होंने स्पीकिंग इन टंग्स किया था, उसने एक्सप्लेन किया था टंग्स, क्योंकि उनके पास सब 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट था, मेरे को लगता है उसकी वजह से वो एक्सप्लेन कर पाए। तो टंग्स के बारे में उसने क्यों, ही वाज नॉट एंटी टंग्स। कोई कोई लोग बोलते हैं कि पॉल टंग्स के अगेंस्ट था, नहीं था वो, टंग्स के अगेंस्ट नहीं था, वो डिसऑर्डर के अगेंस्ट था इन द नेम ऑफ टंग्स, राइट। वो बोलते हैं कि ऑल दिस थिंग्स शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर, राइट। वो कहते थे, वो बोलते थे कि वो खुद टंग्स में बहुत ज्यादा बात करते थे, लेकिन जब चर्च में वो हो गए, वो बोलते आई वुड रादर स्पीक 5 वर्ड्स विथ माय अंडरस्टैंडिंग दैट आई विल बी एबल टू टीच अदर्स। बाकी लोग को पढ़ा सकता हूँ मैं 5 वर्ड्स इन अंडरस्टैंडिंग देन 10,000 वर्ड्स इन अ टंग। So 10,000 words in unknown tongues and 5 words with understanding is greater than 10,000 in tongues. ये अपोस्टल पॉल जो खुद स्पीकिंग इन टंग्स करते थे, वो खुद बोलते थे डू नॉट फोरबिड स्पीकिंग इन टंग्स, वो खुद बोलते थे कि अंडरस्टैंडिंग में बात करना चाहिए। तो इसमें मैं एक और पॉइंट था, ये वीडियो देख के, ये अभी इन्होंने स्पीकिंग इन टंग्स किया है, लेकिन कभी कोई क्या बोलते हैं, ये क्लिप कोई लेके बोल सकता है देखो, यू नो, इसको मॉक कर सकते हैं। एंड इवन क्रिश्चियंस विल मॉक, बिकॉज जो क्रिश्चियंस बिलीव नहीं करते इन द गिफ्ट ऑफ टंग्स, मैंने देखा है, मैं ये साइड में भी था एक वंस अपॉन अ टाइम, और ये साइड में भी आके मैंने ओके फाइन, आई एम नॉट मॉकिंग। जब मैंने जेन्युइन लोग को भी देखा ये साइड में, क्योंकि बहुत प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल्स और वो सब प्रीचर्स को, या जो फॉल्स कल्ट्स है उन लोग टंग्स में बात करते हैं, तब मैं सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। लेकिन बाद में जब जेन्युइन लोग को भी देखा तो मेरे को लगा हाँ, मीन्स कुछ ऑथेंटिसिटी होगा इसमें, right, in this gift of tongues, and they are fake people. It is not a sign of maturity. जब मेरे को वो समझ में आया, it is a sign of क्या बोलते हैं, not maturity, it is a sign of your it's just a gift God has given you to you. तो आपको still, आपको tongues है still, you have to live according. And how do I know I'm saved? It is not because of tongues. मैं टंग्स में बात करता हूँ उसका मतलब मैं सेव्ड हूँ, उसका मतलब ये नहीं है। आई नो आई एम सेव्ड, जो अपना डॉक्टर विलियम लेंग बोलते हैं, आई नो आई एम सेव्ड बिकॉज ऑफ द सेल्फ ऑथेंटिकेटिंग विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट। यानी हमारा जो होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है वो हमें बताता है कि हम क्रिश्चियन हैं, तो वो काफी है, राइट। टंग्स इज नॉट द मेन थिंग, लेकिन हाँ, आपको अगर मिनिस्ट्री में या इन डेप्थ ये डायरेक्शन में जाना है, आप प्रे कर सकते हो, आस्क कर भगवान, भगवान बोल रहे हो, खुदा से आप बात कर सकते हो कि हमें ये गिफ्ट ऑफ टंग्स चाहिए, और इफ गॉड विल्स ही विल गिव यू द टंग्स, दैट गिफ्ट ऑफ टंग्स, लेकिन यूज इट। जो कोई कोरिंथियंस चर्च थे, जब पॉल जिसको क्रिटिसाइज करता था, वो लोग भी टंग्स में बात करते थे, बट उनका स्पिरिट, उनका मॉरल लाइफ या क्योटिक लाइफ, चर्च लाइफ भी बहुत क्योटिक था, वैसा था। इसलिए पॉल को स्टेप इन करना पड़ा ये गिफ्ट के बारे में बताने और कैसा यूज करने के लिए। देखिए, एक आदमी टंग्स में बात करेगा, दूसरे को इंटरप्रेट करना चाहिए उसका टंग्स, अगर चर्च में यूज होने वाला तो। प्राइवेटली आप टंग्स में बात कर सकते हो बिटवीन यू एंड गॉड, या आप खुद से टंग्स में बात कर सकते हो, वो पर्सनल रिलेशन इंटीमेसी की वजह से। तो लेकिन पब्लिकली चर्च को बेनिफिट करने के लिए गिफ्ट जो दिया गया है, इट इज नॉट फॉर योर ओन सेल्फिश थिंग्स। पॉल वो मेन पॉइंट बता रहा है कि गिफ्ट्स, एनी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो दिया जाता है वो चर्च के बेनिफिट के लिए होगा। तो इफ यू आर zealous for gifts, वो बोलता है लेट इट बी फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च, यानी चर्च को बिल्डअप करने के लिए। एडिफिकेशन का मतलब बिल्डअप, राइट, बिल्डिंग को बनाने वाला, बिल्डअप करने के लिए वो आपका फोकस होना चाहिए। सेल्फिश फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा टीचिंग्स भी है। अभी इन्होंने भी एक पॉइंट बोला कि आप स्पीकिंग इन टंग्स करते हो तो सेटन को समझ में नहीं आता वो लैंग्वेज, वो सब चीज है। वो टीचिंग को किसी ने ऐसा बोला है कि अभी आपको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, सेटन को मालूम पड़ेगा तो वो आपको देगा नहीं, तो टंग्स में बात करो तो आपको गाड़ी, मकान, ये सब कुछ मिलेगा, राइट। लेकिन वो गलत है, राइट। हम होली स्पिरिट को यूज नहीं कर सकते फॉर आवर बेनिफिट्स। ही इज नॉट अ जीनी, ही इज नॉट अ सर्वेंट, वो गॉड है, खुदा है। वी शुड बी डायरेक्टेड। पॉल टंग्स में बात करते थे सो दैट ही इज डायरेक्टेड, सेंसिटिव होते थे होली स्पिरिट में, और वो पब्लिकली कभी ऐसा बात नहीं करते थे। वो रेकमेंड भी वही करते हैं कि इन पब्लिक मीटिंग्स में, अभी द लाइफ ऑफ डीजे ज़नागन में भी आप देखोगे उनका कितना भी सर्मन्स
देखा जाएगा तो वो टंग्स में ज्यादा बात नहीं करते थे इंडिया में जब प्रीचिंग करते थे। किसी को पता भी नहीं था, खाली उनका एक वीडियो कहीं शायद लीक हुआ है जो उनका पावर मिनिस्ट्री था जहाँ पे वो टीच करते थे गिफ्ट्स द होली स्पिरिट, जहाँ पे वो टंग्स का उन्होंने बात किया और इंटरप्रेट किया, उतना दिखाया था। नहीं तो पब्लिक मीटिंग में कभी भी गॉस्पेल प्रीचिंग में उन्होंने कभी टंग्स में बात नहीं किया। लेकिन उनके अंदर एक आदमी था, मुझे पता है उनका कोई मिनिस्ट्री में, वो बोलते थे कि ये टंग्स, ये पर्सनल लाइफ में वो बहुत करते थे टंग्स और वो सब चीजें। तो हाउ डू यू पब्लिक को आप कैसा दिखाते हो? और ऑल्सो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा ये गिफ्ट को ज्यादा वो मेन स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहिए। इट इज नॉट एवरीबडीज गिफ्ट, सबका गिफ्ट नहीं। एवरीबडी कैन स्पीक इन टंग्स, मेरा वो है बिलीफ है, बट नॉट एवरीबडी बॉर्न अगेन बिलीवर है जो सब क्या बोलते हैं टंग्स में चूज करते हैं नॉट टू स्पीक। एंड इज अगेन इट्स आपको यूज करना है कि नहीं करना है गिफ्ट, इट इज फ्रॉम गॉड। बाइबल भी सबको दिया, लेकिन सब पढ़ते नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं करते, राइट? कोई कोई लोग करते हैं, गॉड इज गिवन देम द गिफ्ट, और कोई कोई लोग पीएचडी भी करके ना लोगों को समझा नहीं सकते। मैं जानता हूँ ऐसे कितने टीचर्स प्रोफेसर्स उनको सीधा एक सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे उन लोग समझा नहीं सकते। लेकिन ऐसा मैं ऑर्डिनरी लोगों को भी जानता हूँ जो अच्छे से समझा सकते हैं बाइबल बेटर देन अदर्स। तो वो सब एक गिफ्ट्स है, खाली एक गिफ्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए द गिफ्ट ऑफ टंग्स, लेकिन अदर गिफ्ट्स है और पर्पस है चर्च को बिल्डअप करना। तो ये एटलीस्ट आई थिंक आई हैव कवर्ड अप मोस्ट ऑफ जो जो ओपिनियन है ऑन द गिफ्ट ऑफ टंग्स, जो शायद ये पॉडकास्ट में इतना इन्होंने स्ट्रेच नहीं किया होगा, लेकिन खाली अपना पर्सपेक्टिव, बैलेंस पर्सपेक्टिव डाला दोनों साइड से फ्रॉम बोथ द पोजीशंस, करिस्मेटिक या सेसेशनिस्ट पोजीशन। तो आई थिंक सो दैट इज इट। लेकिन आपको भी कुछ पूछना है आकाश, तो अभी इसमें आप पूछ सकते हो। या तो जब ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पेंटिकोस्ट के दिन में जो लैंग्वेज में बात किया गया था जो लोग समझ रहे थे एक्चुअली, लेकिन जब पॉल ये बात कर रहा है चर्च के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा नहीं जा रहा है, मतलब पॉल कह रहा है कि नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट, द वन हु स्पीक्स, मतलब जो बोल रहा है वो भी उसको समझ नहीं सकता है ना। तो क्या ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कभी कभी समझा जा सकता है और कभी कभी नहीं समझा जा सकता है? हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि 1 Corinthians चैप्टर 14 वो उसमें वही 14 चैप्टर है ना, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ोगे, यस। वो बोलता है he who speaks in a tongue does not speak to man but speaks to God since no man understands him, राइट? तो उसमें क्लियरली क्या है कि आदमी समझ नहीं सकता वो लैंग्वेज, राइट? एंड ही स्पीकिंग टू गॉड एंड ही स्पीकिंग मिस्ट्रीज, ऐसा कहा गया है। और बाद में कहा गया है कि जो he who speaks in tongues must also pray that he interprets tongues, यानी जो टंग्स में बात करते, अभी आप एक लैंग्वेज में बात करते हो, आपको इंटरप्रेट करने के लिए क्यों प्रार्थना करना चाहिए? अगर आपका लैंग्वेज आपको पता है क्या है, तो व्हाई डू यू नीड टू प्रे फॉर इंटरप्रिटेशन? ट्रांसलेशन बोलना चाहिए था, लेकिन वर्ड ट्रांसलेशन यूज नहीं है बाइबल में। अगर ये हर्मेनेटिक, द सेम वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर हर्मेनेटिक एक्सप्लेनेशन। तो जो हम सोचते हैं जो टंग्स ट्रांसलेशन नहीं होता उसमें, उसका एक मीनिंग रहता है, जिस्ट रहेगा। एक आदमी शायद स्पीकिंग इन टंग्स करता होगा, समझो कि 10 मिनट तक स्पीकिंग इन टंग्स करता होगा, और इसका इंटरप्रिटेशन शायद 1 मिनट का होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द अदर हैंड पर्सन 1 मिनट के लिए बात करता होगा, इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो सकता है, राइट? तो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रे करने के लिए कोई सेंस नहीं बनता, ट्रांसलेटर को बुलाना चाहिए था इन वन सेंस, ऐसा बोल सकते हो। तो इट इज अ लैंग्वेज दैट इज नॉट नोन। और 1 Corinthians 12 में भी अभी इसमें लेकिन ना एक फ्रेज है, दो आई स्पीक इन द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, राइट? इफ आई डोंट हैव लव इट प्रॉफिट्स मी नथिंग, राइट? तो इसमें एक चीज है कि देयर इज टंग्स ऑफ मेन और टंग्स ऑफ एंजल्स मेंशन किया है। 1 Corinthians 13 है आई थिंक वो। 13 1 Corinthians 13 ही बोला ना। यस। 1 Corinthians 13 में उसमें वो कहा गया कि टंग्स ऑफ मेन एंड एंजल्स। उसमें पॉइंट ये था कि अभी यहाँ पे भी मेरा एक और पॉइंट बोलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई चर्चेस बोलते हैं कि हेंस लव इज इम्पोर्टेंट, गिफ्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, या ये गलत है, वो भी गलत है। पॉल ये नहीं कहेगा कि लव इज इम्पोर्टेंट, गिफ्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। एंड ये इंटरप्रिटेशन कैसा आता है क्योंकि चर्चेस
कोई कोई चर्चेस में क्या बोलते हैं गिफ्ट ऑफ टंग्स का एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और बाद में और कोई कोई चर्चेस में जहाँ पे है उन लोग ये चर्चेस को बोलते हैं कि आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है और या जेन्युइनिटी नहीं है। तो इसके बीच में ऐसा ऐसा एक थियोलॉजी डेवलप हुआ है कि लव इज इम्पोर्टेंट, गिफ्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन पॉल ऐसा नहीं कह रहा है। वो बोलता है परस्यू लव एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। लेकिन ये पॉइंट में तो दोनों चाहिए, लव इज द मोटिवेशन, बाकी लोग को हेल्प करने के लिए आपका मोटिवेशन रहना चाहिए चर्च को बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है टंग्स ऑफ एंजल्स। टंग्स ऑफ एंजल्स कौन सा लैंग्वेज था? एंजल्स ने क्या किया, कौन सा लैंग्वेज सीखा था, बोला था? गुजराती, मराठी, राइट? हमें पता नहीं। तो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि जो कोई अभी स्पीकिंग इन टंग्स करते हैं वो क्या बोलते हैं एंजल का लैंग्वेज बात कर रहे हैं। इट मे नॉट बी इवन लैंग्वेज ऑफ एंजल, कुछ हो सकता है लैंग्वेज, और इट्स नॉट कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी नहीं है, राइट? एटलीस्ट फ्रॉम 1 Corinthians 14 वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज था नहीं। और इवन इन क्या बोलते हैं एक्ट्स 2 में भी वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं था एक्चुअली, देखा जाएगा तो वो बाकी लोग को वो अपने लैंग्वेज में सुनाई दिया अपने राइट। लेकिन समझो एक आदमी ने बात किया, ऐसा हो सकता है कि 2-3 आदमी, ये आदमी ने क्या बात किया उनको अपने लैंग्वेज में समझा, लेकिन इसने शायद कुछ भी बात जो इसने बात किया इट मे नॉट बी कंप्लीट ग्रीक या कंप्लीट हिब्रू, वैसा भी नहीं है, या कंप्लीट कोई भी लैंग्वेज, तो और उनको भी पता नहीं था, राइट? इट्स नॉट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, इट इज बिटवीन हिम एंड गॉड। तो एक मिस्टीरियस लैंग्वेज, पॉल यही चैप्टर में 1 Corinthians 14 में बोलते हैं टंग्स इज फॉर बिल्डिंग अप योरसेल्फ, योर स्पिरिट मैन, पर्सनल रिलेशनशिप में वो है, पॉल करते थे, राइट? तो वो भी क्लियर है कि गॉड और हमारे बीच में एक पर्सनल इंटरनेट लैंग्वेज है, शो ऑफ करने का नहीं। और इन्होंने ये एक अच्छा पॉइंट बोला था, तो टंग्स में बात करने की जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन उन्होंने पॉइंट बोला था कि यार इंटरप्रिटेशन नहीं है तो किसी को समझेगा नहीं, तो मोर इम्पोर्टेंट है कि इंटरप्रेटिंग चाहिए, राइट? इट कैन बी अ नोन लैंग्वेज, इट कैन बी नोन लैंग्वेज इन द सेंस सामने वाले को शायद नोन लगेगा, लेकिन स्पीकर को आई डोंट थिंक सो इट विल बी नोन लैंग्वेज, तो होएगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बात बोला कि उन्होंने टंग्स के ऊपर टंग्स बोला और उन्होंने बोला कि गॉड इज स्पीकिंग थ्रू मी, ऐसा बोला। जबकि टंग्स में तो एक व्यक्ति मतलब बात करता है तो वो अपने से बात करता है, इवन दो ही हैज द गिफ्ट, उसके पास गिफ्ट होता है, लेकिन वो परमेश्वर उसके जरिए से बात नहीं करता है ना। तो ये आई बिलीव हमेशा जब हम टंग्स में बात करते हैं इट इज नॉट ऑलवेज क्या बोलते हैं कम्युनिकेटिंग विद गॉड। फॉर एग्जाम्पल एक पोर्शन जहाँ पे लिखा है कि इफ देयर इज नो इंटरप्रेटर ही शुड कीप साइलेंट, राइट? वो एक 1 Corinthians 14 में लिखा है इंटरप्रेटर नहीं है तो साइलेंट रहने का, लेकिन उसके बाद उस वही लाइन में लिखा है ही शुड बी साइलेंट बट ही शुड स्पीक टू हिमसेल्फ और टू गॉड। तो आप खुद से बात कर सकते हैं लैंग्वेज, राइट? तो ये डायरेक्ट है कि ये लैंग्वेज आप अपने गॉड एंड हिमसेल्फ दोनों को डिस्टिंग्विश किया, राइट? उसमें मतलब आइए आप ये लैंग्वेज खुद को भी बात कर सकते हो, यानी खुद को एनकरेजमेंट दे सकते हो, और वो मीनिंग आपके हार्ट में आता है नॉर्मली, ऐसा बोलते हैं, राइट? On the other hand, you are speaking to God. He who speaks in a tongue does not speak to man, but speaks to God. So God is, आप नहीं बात करते, आपके अंदर क्या बोलते हैं होली स्पिरिट है जो आपको लैंग्वेज देता है, एंड यू आर स्पीकिंग। तो बाइबल में ये भी लिखा है कि द होली स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर यू। जीसस इज इंटरसीडिंग फॉर ऑल बिलीवर्स, लेकिन होली स्पिरिट इंटरसीड करते हैं, दैट इज इन रोमन्स चैप्टर नंबर 8 में, राइट? विद ग्रोनिंग्स दैट कैन नॉट बी अटर्ड। कोई कोई बोलते हैं कि दैट इज टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट ऑफ टंग्स, जो जिससे प्रार्थना करते, प्रे करते, येट कोई कोई थियोलॉजियंस नहीं एक्सेप्ट करते उसमें, वो बोलते कि जस्ट खाली प्रे करते हैं हमारे अंदर से, वो खाली स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में बात नहीं करते स्पेसिफिकली, रोमन्स 8। लेकिन द पॉइंट है कि होली स्पिरिट इंटरसीड करता है, तो जब हम स्पीकिंग इन टंग्स करते हैं गॉड इज स्पीकिंग, ऑफ कोर्स होली स्पिरिट हमारे अंदर है जो बिलीवर है, उसके थ्रू ही ये गिफ्ट यूज करता है, इसलिए बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट ही बोलते हैं इसको टंग्स को बाय डेफिनेशन। तो या गॉड इज स्पीकिंग, लेकिन अलग केसेस में है कि यहाँ पे यही वर्स 14 में लिखा है अलग अलग पॉइंट्स में कि
when I speak in tongues, you give thanks well, Paul बोलता है, but other is not blessed. यानी आप tongues में कभी कभी बात करते हो तो आप thanks देते हो God को. God is not speaking to you, like I mean in the sense आपको मैसेज नहीं दे रहा वो टाइम में आप जब टंग्स में बात करते हो वही टाइम में आपका ह्यूमन स्पिरिट विद द होली स्पिरिट इज थैंकिंग गॉड, तो आप कम्युनिकेट करते हो वैसा. समझ में आया? जी 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 प्लस 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 क्या बोलते हैं, टंग्स को कभी कभी इंटरप्रेट करना पड़ता है ना. अभी सब टंग्स इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं. बस गॉड इज नॉट कंटिन्यूसली स्पीकिंग मैसेजेस फॉर अदर्स, राइट. कभी कभी ये मैसेजेस आपके स्पिरिट के लिए, और ये पर्सनल है कि टंग्स क्या बोलते हैं ना, इंटीमेट टाइम विद गॉड का एक वन ऑफ द वेज है. इट इज सिमिलर लाइक आप किसी को कोई लोगों का इंटीमेट टाइम रहता है वर्शिप करना, और वो वर्शिप टाइम में उनका क्या बोलते हैं, दे फील ब्लेस्ड, दे फील वेरी मच फिल्ड विद द होली स्पिरिट. या आप खाली एक प्रीचर ने ऐसा भी रेकमेंड किया है साम्स, आप साम्स पढ़ोगे, राइट, दैट इज ऑल्सो बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट. आप जब साम्स पढ़ोगे या बाइबल भी पढ़ोगे, राइट, मेडिटेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट. तो ये अलग अलग वेज है, थोड़ा हेल्प करता है, टंग्स एनहांस करता है. जस्ट लाइक देयर सर्टेन थिंग्स आज टेक्नोलॉजी एनहांस करता है हमें. तो कोई चीज पढ़ना है, समझना है, सीखना है, एप्स, राइट, दे एनहांस इन सर्टेन डिफरेंट वेज. टंग्स भी अपने को एक टाइप में एनहांस करता है. तो स्पिरिचुअल लाइफ जिसको वो लाइफ जीना है, लेकिन आप यूज नहीं करोगे बाइबल या आप यूज नहीं करोगे ये गिफ्ट अपने पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ, तो कुछ फायदा नहीं बनता. मैं कितने क्रिश्चियंस को जानता हूँ सैडली जिनके पास ये गिफ्ट है, लेकिन वो ना दिन में क्या बोलते हैं 1 घंटा भी निकालते नहीं है प्रेयर लाइफ में. तो गिफ्ट का कुछ फायदा क्या है? क्योंकि ये एनहांस आपके प्रेयर लाइफ, पर्सनल प्रेयर लाइफ को एनहांस करने के लिए. अगर वो प्रेयर लाइफ आपका है ही नहीं तो गिफ्ट भी वेस्ट हो रहा है. जिसके पास बाइबल है लेकिन वो खोलता नहीं है. अच्छा तो मतलब हमें एक्चुअली रियल एक स्पिरिचुअल रियल में मतलब एक आत्मिक जीवन में क्या होता है वो तो पता नहीं होता है, राइट. हमें क्या हम जैसे कि प्रेयर हम करते हैं तो प्रेयर कैसे आंसर होता है हमें पता नहीं होता है नो. एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में भी बाइबल बात करता है, और ट्रेजर इन हेवन जैसे कि बात करता है कि हमारा जो धन है वो स्वर्ग में जमा होता है, ऐसा वाला बात होता है. तो ये भी उसी तरह का एक स्पिरिचुअल वर्क है जो हमें कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन यस इट बेनिफिट्स. ऐसा है क्या? ये फॉर एग्जांपल आप इसको क्या बोलते हैं ना, इसका रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटली कुछ दिखा नहीं सकते, कर नहीं सकते, राइट. बिकॉज एक और चीज उसमें लिखा है स्पीक्स इन टंग्स, स्पीक्स मिस्ट्रीज, और मैं हमेशा सोचता था क्या मिस्ट्री है, राइट. लेकिन क्योंकि वो मिस्ट्री को इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगेन 1 Corinthians 13 में लिखा था, दो आई स्पीक इन दो आई अंडरस्टैंड ऑल मिस्ट्रीज, राइट. तो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो हम बात करते हैं टंग्स के लिए, पूछने के लिए उसके बारे में. आई मीन विद गॉड, गॉड गिव्स यू सम रेवलेशन हिंट. वैसे भी इट इज नॉट ट्रांसलेशन, वो समझना चाहिए ऑडियंस जो सुन रहे हैं, राइट. एक जो आप समझो, आप 1 घंटे तक कभी बात करोगे और उसका इंटरप्रिटेशन एक छोटा चीज रहेगा, शायद ऐसा कुछ रह सकता है अपने हार्ट में. नॉर्मली जो जिससे मैं जो ये गिफ्ट में ऑपरेट होता है, उन लोग बोलते हैं कि कभी गॉड उनको एक डायरेक्शन देता है या एक इंटेंशन स्ट्रांग हो जाता है कि ये चीज करना है, या कभी वीक हो जाता है जब उन्हें प्रे करते हैं टंग्स में, उनको लगता है कि भाई ये चीज नहीं करना चाहिए. और ऐसे टेस्टिमनीज है, राइट. अगेन ये सब टेस्टिमनीज एक्सपीरियंस वेरी होते हैं. तो हम ऐसे क्या बोलते हैं, और ये प्रॉब्लम है विद करिस्मेटिक सर्कल्स में, क्योंकि वी कैन नॉट मूव. लाइक इवन गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग होता है, गिफ्ट्स ऑफ डेलिवरेंस, वो सब, आई मीन नॉट गिफ्ट ऑफ डेलिवरेंस भी होता है, लेकिन अभी उसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे, कभी फेल भी हो सकता है. पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट हील्ड, राइट. कभी प्रे करेंगे नहीं होते हील, तो कभी कभी ऐसा मिरेकल आप सोचते हो लोगों का होता है हीलिंग, राइट. तो आप कैसा इंटरप्रेट करते हो लेंस से? आप बोल सकते हो कि वो नेचुरली हील हुआ, कोई बोलेगा कि सुपर नेचुरली हील हुआ. ऐसे केसेस मैंने देखा है, मैंने हीलिंग्स भी ऐसा देखा है जो क्या बोलते हैं इमीडिएटली हुआ है. हीलिंग्स कभी कभी टाइम लगा है, बहुत टाइम, लेकिन हुआ है. और कभी कभी हीलिंग हुआ ही नहीं है, तो कोई लोग तो अच्छे लोगों के साथ भी. तो ये एक्सपेरिमेंटली आप कभी प्रूव नहीं कर सकते कि इफ आई स्पीक इन टंग्स ये XYZ होगा लॉजिकली, राइट. गिफ्ट्स वर्क,
in different ways as the Holy Spirit. तो अगेन जब आप पूछते हो, जब ये टंग्स में हम ये बात कर रहे ये है, ऐसे एक्यूरेसी से आई डोंट थिंक सो होता है वो गिफ्ट ऑफ टंग्स. मैं एक ओके एक एग्जांपल देता हूँ. हम जानते हैं कि अपोस्टल पॉल टंग्स में बात करते थे, लेकिन एक पॉइंट था कि अपोस्टल पॉल ने अपने सपने में विजन देखा था, विजन, राइट, विजन देखा था कि मैसिडोनिया में एक आदमी उनको बुला रहा है, राइट. वो विजन में देखा, और वो विजन खाली देख के सपने में उस कौन था आदमी उसको पता नहीं, लेकिन अपोस्टल उसको लगा कि मैसिडोनिया का आदमी था और वो बुला रहा है. वो खाली विजन अपोस्टल को, पीटर ना. नहीं, पॉल 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 को आई थिंक सो मैसिडोनिया का वो था, उसके विजन में आया था कि मैसिडोनिया में somebody is calling us, और बाद में वो मैसिडोनिया में वो खाली विजन के हिसाब से, खाली वो विजन के हिसाब से उसने अपना मिशनरी प्लान चेंज करके मैसिडोनिया गया. तो अगेन इट कुड, पॉल बहुत प्रार्थना करते थे, तो इट कुड बी अ पॉइंट कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट क्या करना है हमें नेक्स्ट, राइट, उसका एक वो देगा शायद कभी कभी, क्योंकि पॉल ने कभी भी ये भी कहा कि द होली स्पिरिट फोरबिड अस फ्रॉम गोइंग टू एशिया वो टाइम में, राइट. इट इज नॉट कि एशिया में कभी जाना नहीं, लेकिन वो टाइम में शायद ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा. तो ये गिफ्ट ऑफ टंग्स इज टू एनेबल, मेरे को लगता है, सेंसिटिविटी टू द होली स्पिरिट्स लीडिंग, राइट. ये करना है नहीं करना है, ये जाना है नहीं जाना है, और उसका गारंटी भी वो नहीं है कि भाई ये जो होली स्पिरिट बोलता है हमें करने सब अच्छा होने वाला है हमारे साथ. ऐसा नहीं है. पॉल को एक प्रॉफिट ने आके बोला था कि आप आगे जाओगे. अगाबस था, आई थिंक सो, इट वाज अगाबस, जिसने वो बेस्ट में बांधा था ना. उन्होंने बोला कि पॉल आगे जाएगा तो उसको ही विल बी पुट इन चेंज, राइट. अभी आपको ऐसा प्रोफेसी दिया गया है कि आप समझो कि अभी कश्मीर जाओगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आप कश्मीर जाओगे नहीं ना. लेकिन पॉल ने क्या कहा कि द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स मी, इनका वो था, और वो आगे गए. इवन द प्रॉफिट ने कहा, वो टाइम प्रॉफिट ने कहा कि ऐसा होने वाला है, वो आगे गया और गॉड ने वो चेंज किया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिकॉज लव वाज द मोटिवेशन. तो प्रॉफिट या प्रोफेसी या ये सब गिफ्ट्स है, वो आपको खाली एक लिमिट तक बता सकते हैं. उसके बाद वो पूरा आपको मैप नहीं बताएंगे. जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं हम, या जो फेक लोग बोलते हैं कि आपका पूरा जिंदगी बताएंगे, वैसा नहीं है प्रोफेसी. प्रोफेसी आपको होली स्पिरिट कभी एक वर्ड देगा, वो टंग्स के अंदर भी दे सकता है, एंड आपके नॉर्मल प्रीचिंग के ऊपर भी दे सकता है, राइट. मैं अभी 1 Corinthians 14 में मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 1 Corinthians 14 में पॉल ने ना कहा है कि 5 words with understanding is more better than 10,000 words in tongues, because it is used for the church का benefit है. लेकिन उन्होंने कहा कि if somebody comes with prophecy, somebody comes with revelation, somebody comes with teaching, right, or prophecy, ये सब चीज देखते हैं, राइट. उसमें टीचिंग मेंशन किया है, यानी एक आदमी कभी जो टंग्स में बात नहीं किया लेकिन उसने टीचिंग किया या रेवलेशन से कुछ बात कर रहा बाइबल से, राइट, दैट इज एज बेटर एंड इट इज मच मोर बेटर देन अ पर्सन स्पीकिंग इन टंग्स इन पब्लिक. और वो टंग्स में अगर पब्लिक में भी बात करना चाहते हैं तो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को समझे. प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी इज नॉट इन अननोन लैंग्वेज, प्रोफेसी नोन लैंग्वेज है. तो इंटरप्रिटेशन जो आप टंग्स में बात करते हो, ठीक है, आपको करना है टंग्स में बात करो, लेकिन पब्लिक को, जो चर्च गोअर्स को, उनको समझने के लिए आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहिए, एंड दैट इज मच बेटर, राइट. तो ये खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ. उसका स्पीकिंग इन टंग्स, इट इज नॉट हमेशा हमें पता नहीं रहेगा, इट इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप, ग्लिम्स बाय ग्लिम्स. गॉड इन प्लस आप होली स्पिरिट के साथ वो लाइफ जी रहे हो, कह रहे हैं. यू कैन, मैंने आपको एग्जांपल इसका भी दिया था, अपना टेली इवेंजलिस्ट या जो कल्ट्स या विलियम बनहम और सब लोग, उनका एग्जांपल्स क्यों दिया, क्योंकि एंड मोस्ट पीपल अभी क्या टंग्स के अगेंस्ट है, बिकॉज दे सी बैड एग्जांपल्स लाइक दिस. उनको गुड एग्जांपल ज्यादा दिखता नहीं है, राइट. तो लेकिन मैंने ये इनका एग्जांपल्स क्यों दिया कि आपको समझे कि क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ टंग्स इज नॉट द अल्टीमेट गिफ्ट, राइट. वो एक अल्टीमेट गिफ्ट नहीं है जो क्या बोलते हैं प्रूव करता है कि आपके अंदर होली स्पिरिट है,
राइट, यू कैन मेस इट अप. जैसे एक ओके आदमी डिग्री लेके भी थियोलॉजी में ही कैन मेस इट अप. तो बस उतना ही है उसका उसका पॉइंट मैं खाली बता रहा हूँ इसमें. ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं. अभी रिसेंटली नहीं, बहुत समय से दानियल राज करके एक है, एक टीचर है, तो वो टंग्स के ऊपर बहुत वीडियोस बनाते हैं, टंग्स को एक अपर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ट्रीट करते हैं. तो और वो कहते हैं कि टंग्स इज ओनली अ ह्यूमन लैंग्वेज, दैट इफ इट इज अंडरस्टूड देन इट इज अ टंग, ऐसा वाला. कि मानो आप कोई टंग्स बोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे. अगर वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, मतलब अगर उसको आप समझ नहीं सकते हो, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली, अगर आप उसको समझ नहीं सकते हो तो वो टंग्स नहीं हो सकता. आप मतलब कैसे हो, हाउ डू यू जस्ट रेस्पॉन्स? नहीं, तो नया पॉइंट है 1 Corinthians 14 में. उसमें कहा गया है कि he who speaks in tongues speaks in a way that no one understands, no man understands him. राइट, ऐसा क्यों कहा अपोस्टल पॉल ने नो मैन अंडरस्टैंड्स? प्लस अपोस्टल पॉल ने ऐसा क्यों कहा है कि इंटरप्रेट द टंग्स? राइट, टंग्स को क्यों प्रे कर रहे हैं हम लोग, या गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन क्यों मांगना चाहते हैं हम होली स्पिरिट से? राइट, अ पर्सन जिसके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि वो इंटरप्रेट करे. क्यों? क्यों? इट सो दैट इट बिकम्स अ अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. तो उससे पहले, बिफोर इट वाज एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उससे पहले वो एक लैंग्वेज था जो समझ में नहीं आता था. तो उसको अननोन इसको बोलते हैं, उसका अननोन टंग्स, मिस्टीरियस लैंग्वेज, वो सब चीजें इंटरप्रेट करते हैं, तब वो नोन लैंग्वेज होता है. तो शायद डैनियल, मैं एक्चुअली दोनों को फॉलो नहीं करता, डैनियल राज या दूसरा कोई प्रीचर है, जानता भी नहीं था एक्चुअली उनको इतना पर्सनली, बट ही इज रॉन्ग उसमें, बिकॉज टंग्स इज अ लैंग्वेज दैट इज अननोन इन एटलीस्ट 1 Corinthians 14 के उसमें. राइट, नहीं तो इंटरप्रिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी. वो शायद बोल गए कि मे बी आई एम अज्यूमिंग कि प्रोफेसी को वो मानते हैं, प्रोफेसी इज द ओनली टर्म दैट इज वैलिड. ऐसा अगर वो बोलना चाहते हैं, अगर अगेन मैंने उनको सुना नहीं है, इफ ही इज ट्राइंग टू से कि प्रोफेसी इज द ओनली टर्म, मैं जो उसको वैलिड मानता हूँ, ठीक है. लेकिन अगर वो डिनाई करते कि ये लैंग्वेज जो बात करते हैं बिलीवर्स, बिकॉज है बड़े, उससे भी बड़े, डैनियल राज से भी बड़े बड़े लोग हैं जो स्पीकिंग इन टंग्स करते हैं, and people don't understand that, and then it is not supposed to understand, they are not even supposed to understand when personal time में use करते हैं या prayers में use होता है, वो time में it's not important, unless church में खाली preaching या mic लेके बात करते हो, वो help के लिए you have to interpret that. So clearly उनको पढ़ना चाहिए 1 Corinthians 14, तब आप वो तब समझ जाएंगे कि tongues ऐसा उसका interpretation समझ जाएंगे. क्या बोलते हैं, it is an unknown language also. डैनियल राज के बाइबल में 1 Corinthians 14 है? डैनियल, लाइक टू बी ऑनेस्ट, देखो ये ना उसने, if I'm sure अभी वीडियो बनाया, is criticizing another pastor, right? या सूरज प्रमाणे. सूरज परमानी. ओके, सो अगेन लाइक सूरज परमानी, डैनियल राज, ये सब आते हैं फ्रॉम अ वेरी charismatic सर्कल्स जहाँ पे लोग स्पीकिंग इन अननोन टंग्स करते हैं. राइट, अभी सूरज परमानी भी टंग्स में बात करते हैं. राइट, मैं जानता नहीं है उसको पर्सनली टू बी ऑनेस्ट. राइट, लेकिन माय पॉइंट यहाँ पे है कि ये लोगों को थोड़ा टाइम है ना ज्यादा बाइबल पढ़ने में करना चाहिए, स्पेंड टाइम करना चाहिए, बिकॉज अभी क्रिश्चियन सर्कल्स में मोटिवेशन टाइप ऑफ प्रीचर्स है जो मोटिवेट करते हैं, encourage, गिफ्ट ऑफ एनकरेजमेंट है. और शायद कोई डैनियल राज को सुन के या सूरज परमानी को सुन के मोटिवेट होते, जैसे वेस्ट में जोएल ऑस्टिन है. राइट, जॉन ऑस्टिन या जोएल ऑस्टिन, जोएल हाँ, ऑस्टिन. जोएल ऑस्टिन है. ऐसे अभी इवन कौन जॉइस मेयर आपने बोला था कि उनका भी कभी टीचिंग्स कोई अच्छा रहता है, लेकिन एनकरेज करने को, एडिफाइंग, लेकिन ये हमेशा बिब्लिकली है कि नहीं साउंड, वो क्वेश्चनेबल है. राइट, ये हमेशा 100% बिब्लिकल है कि नहीं, उसमें कुछ उन लोग एक्सपोजिशन ऑफ स्क्रिप्चर करते हैं कि नहीं, उन्होंने कितना बाइबल पढ़ाने के लिए. क्योंकि अभी क्या होता है कि कोई आदमी फेमस हो जाता है ना, वो इमिडिएटली प्रीचर बन जाता है. या जिसके पास प्रॉपर्टी, जोएल ऑस्टिन का पिताजी वो बड़ा पास्टर था, तो उसको चर्च और बड़ा कॉन्ग्रेगेशन मिल गया, और वो अपना मोटिवेशन एनकरेजमेंट कर रहा है. मैं क्रिटिसाइज नहीं करता ज्यादा पास्टर्स लोग को, बिकॉज सबका कॉलिंग अलग रहता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि
वो ही फुल गॉस्पेल है, राइट? या वही चीज है, और उसके अंदर बहुत सारे टीचिंग गलत भी हो गए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो या बाइबल को हटा के होली स्पिरिट में ऐसा बात करते हो ऐसा जाओगे, दैट विल बी अ बिगेस्ट रिस्क। होली स्पिरिट विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द बाइबल में, आपको ये कहता है। इंटरप्रिटेशन लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन वो बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज भी मैंने एक्सट्रीम देखा है एक्चुअली कैरिस्मेटिक सर्कल्स में। जो लोग बोलते हैं कि होली स्पिरिट इज लीडिंग मी करके इतना पाप करते, तो ऐसा बात भी नहीं करना चाहिए। होली स्पिरिट इज इवन स्पीकिंग टू यू भी, समझो कि परमेश्वर ने आपको एक मैसेज दिया है, टंग्स में नहीं लेकिन आपको मैसेज दिया है परमेश्वर ने, राइट? आप जाके ऐसा मत बोलो कि गॉड इज टेलिंग मी दिस, दस सेड द लॉर्ड। आप ऐसा बोल नहीं सकते। आप खाली इनको अच्छे से समझाओ, बिकॉज लोग आपको एक एलिवेटेड पोजीशन में डाल देंगे सभी। वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप आइडल हो सकते हो, आप आइडल बन जाओगे। इसलिए एक और चीज अच्छा था ये आदमी का, द बेस्ट थिंग जो पूरे टॉक में था, वो एम्फोसाइज कर रहा था ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी। जिसके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है ना, उनको हम्बल रहना चाहिए। बिकॉज अच्छे अच्छे लोग ये गिफ्ट में क्या होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को लगता है कि गॉड इज ओके विद हिम, ओके विद अस। ये खाली ये टंग्स में नहीं है, ये थियोलॉजी की साइड में भी हो सकता है। जिसके पास बहुत डिग्रीज है उसको लगता है कि गॉड इज हैप्पी विद हिम, या थियोलॉजी में बहुत फेमस है, क्रिश्चियन सर्कल में फेमस है, वर्शिप टीम भी हो सकता है। तो डैनियल राज को मैं, पास्टर डैनियल राज को मैं, थोड़ी पास्टर है मुझे शायद मालूम पड़ा, वर्शिप लीडर थे पहले वो टाइम में, अभी पास्टर है। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज रीड द बाइबल प्रॉपर्ली। और सूरज प्रेमानी जी को भी मैं वही कहूंगा कि टीच द बाइबल प्रॉपर्ली, स्टडी द बाइबल प्रॉपर्ली। और अपने एक दूसरे को भी यही बोलूंगा कि हमें बाइबल अच्छे से पढ़ना चाहिए, बस वही है। ओके, थैंक यू। या